glad to be here today, and I really thoroughly enjoyed the previous two talks because I've been here since morning and I heard the first two talks, especially Javed Saab's talk. It was really interesting in that it helped set perspective, for whatever I was going to say. So it kind of built a lot of foreground for me, making things easier. I want to begin by explaining what the public policy process is. And I will break it down in easy words for people to understand, even if they're not experts in public policy. So public policy सबसे पहले होती क्या है? और इस पूरे process को explain करते हुए अगर मैं examples use करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं examples girls education in Pakistan की use करूं ताकि चीजें perspective में रहें. Baharhal, let me clarify that I'm by no means an expert on girls education per se. I am my expertise within research lies with women's employment, which is kind of an offshoot of the same thing, but not exactly the same. Okay. So public policy का जो process है वो तीन चीजों का overlap. हमेशा ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी. वो तीन चीजें हैं theory, method और process और sorry politics. Theory से मेरी मुराद है nitty-gritties, public policy क्या है, formulation किसको कहते हैं, implementation क्या होती है, tools क्या हम इस्तेमाल करते हैं, design के तरीके क्या होते हैं. Method में हम बात करते हैं कि ये सारे theoretical concepts जिनको हमने conceptualize किया, इनको हम किन-किन तरीकों से deploy कर सकते हैं. For example, अगर हमने agenda set करना है, तो agenda set करने के क्या-क्या तरीके. अगर हमने public policy की formulation करनी है, तो formulation के क्या-क्या तरीके. ठीक? तो method में हम तरीकों की बात. और तीसरा ये है कि इस overlap में हम कभी भी public policy का entire जो process है वो कभी भी वैक्यूम में नहीं हो रहा. हम पब्लिक पॉलिसी कभी भी एक असाइनमेंट की तरह नहीं बना रहे होते जिसमें कोई कुछ ऐसा ना हो कि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट. हमेशा पब्लिक पॉलिसी क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इट इज ऑलवेज हैपनिंग विद इन अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड. सो पॉलिटिक्स का हमेशा रोल है, राइट. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. ओके. अब public policy के process में अगर आप even if you go on to your search engine whatever you're using, let's say you open Google and you search what public policy process is, तो जो सबसे पहली चीज आपके सामने आएगी वो होगा एक बड़ा simplistic सा version जिसको हम stages model कहते हैं. अब देखिए आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि कोई भी जो प्रोसेस होता है, स्पेशली अगर वो एक सियासी प्रोसेस है, तो वो कभी भी इतना नीट नहीं होता कि उसमें स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 ऐसे हो, राइट. लेकिन फॉर द सेक ऑफ ईजिंग थिंग्स आउट हम हमेशा प्रोसेसेस को स्टेजेस में डिवाइड इसलिए करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी. अब विद इन पब्लिक पॉलिसी थियोरी, विद इन एकेडमिक लिटरेचर, स्टेजेस मॉडल के ऊपर ऑफ कोर्स आपको बहुत तनकीद मिलेगी, मगर to keep things easier, to keep things on a beginner's level, I will try to break it down into stages. अब usually अगर आप stages देखें public policy के तो उसमें कभी 5, कभी 8 stages होंगे, लेकिन अगर उन सबको मोटा-मोटा divide करें तो 4 stages हैं public policy process. 4 मोटे-मोटे stages हैं. I'm sorry I did not have a lot of time to prepare slides for you. अगर मैं slides prepare करती तो शायद आपके लिए आसान होता, मगर अभी you will have to bear with me and take notes. And I think it works, right? I'm being very slow, so you can take notes. Number 1 is agenda setting. Number 2 is formulation. Number 3 is implementation. And number 4 is evaluation. If at any point you want me to stop or explain something, I'll stop and explain. I think I read a comment about someone wanting me to explain the political process. I'll come down to it, okay? Let's put a pin in that. Okay. Agenda setting क्या होती है? Agenda setting is the process of defining a problem. ठीक? कि आप एक problem को problem के तौर पे specify करें, उसको as a problem समझें और उसको ऑपरेशनलाइज करें इनटू वर्केबल प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मुल्क में बेरोजगारी ज्यादा है, ये एजेंडा नहीं है, लेकिन अगर
हम ये कहें कि बेरोजगारी का लेट्स से हमने एक खास ड्यूरेशन के दौरान एक kind of, yes, it is a problem statement. So agenda setting is kind of defining a problem statement. हमने उसको थोड़ा सा ऑपरेशनलाइज कर लिया, ठीक। अब जो मैं थ्योरी मेथड पॉलिटिक्स वाली बात करी थी, वो ट्राइपॉड हर जगह रहेगा। एजेंडा सेटिंग से शुरू हो जाता है। एजेंडा सेटिंग में भी मेथड्स यूज होते हैं, एजेंडा सेटिंग में ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और पॉलिटिक्स का रोल स्टार्ट ही एजेंडा सेटिंग से। फॉर एग्जाम्पल, if you were to say that, for example, poverty needs to be reduced, first of all, you will have to politically establish that poverty has increased, and there are a lot of political consequences of saying that, right? I really don't want to go into the details of that because I'm running short of time. I think I have to wrap this up in 20 minutes. So, for example, right now, for this purpose, let's say आप लोगों ने अपने policies design अगर करने हैं students ने यहाँ पर, तो यहाँ पे एजेंडा सेटिंग आप कैसे करेंगे? आप प्रॉब्लम को ऑपरेशनलाइज करने के प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में, give me one moment, पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में एजुकेशन की टर्म्स में अपने सारे नेबर्स में शायद सबसे स्लोएस्ट परफॉर्मिंग है, राइट। 22 मिलियन के आसपास के बच्चे स्कूल से बाहर हैं। रूरल एरियाज में लिटरेसी, मतलब सिर्फ मैं यहाँ पर फुल एजुकेशन की बात नहीं करी, लिटरेसी रेट्स भी औरतों का, लड़कियों का, आई थिंक 35 to 40% के आसपास है। 12 मिलियन के आसपास लड़कियां आउट ऑफ स्कूल हैं। 9th ग्रेड में सिर्फ 13% गर्ल्स reach grade 9, which means we have a problem. So here we are defining a problem, and then setting an agenda might be, for example, something like we have to get the figure of let's say 12 million girls being out of school to, let's say, 9 million by year 2024, right? So that's one kind of an agenda. I think there's one student who's confused with my use of politics. By politics, I mean politics, but I mean national politics, right? Because public policy का जो process है, ये government level के ऊपर। अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, उन एक्टर्स में सबसे पहले आ जाती है आपकी गवर्नमेंट, दूसरे के ऊपर आ जाती है आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें आपकी ऑपोजिशन शामिल है, उसके साथ बाकी के जो एक्टर्स हैं उसमें आपके स्टेट एक्टर्स हैं, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, उसमें आपकी मिनिस्ट्रीज शामिल है, उसमें फॉर्मुलेशन के अंदर इन्वॉल्व सारी सिविल सोसाइटी शामिल है, एनजीओ शामिल, और इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर इन्वॉल्व अगेन आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, आपकी स्टेक होल्डर्स शामिल है, लोग शामिल, राइट। So, of course, there's an ongoing power dialogue going on when we're talking about public policy process. अच्छा, अब coming down to formulation. Agenda setting पहला stage था, दूसरा है formulation. Formulation वो stage है जिसमें हम अपने problem को break down करते हैं। इसको आप conceptualize ऐसे करें, when you're shredding something into fibers, into small fibers, right? So there's a big problem, then you shred it down into fibers. Why? Because when you shred your problem down, you realize that one big problem is usually a set of many small problems, right? And now, if you want to focus down onto one solution, you will first have to identify all the possible alternates to solving that problem. Then आप, based on what your goal is, जो कि आपने एजेंडा में सेट किया था, based on what that goal is, आप सारे available alternates को evaluate करते हैं, analyze करते हैं, और उनमें से कोई एक जो आपके गोल को सबसे ज्यादा सूट कर रहा होता है उसको आप डिजाइन करने लग जाते हैं। डिजाइन हम करते हैं यूजिंग टूल्स। अगेन, मैं टूल्स और डिजाइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर आना चाहूंगी अगर मेरे पास वक्त रहा, अगर वक्त ना रहा तो मैं आपको थोड़ा सा लिटरेचर सजेस्ट कर दूंगी, एक आध किताबें और एक दो रिसर्च पेपर्स, नॉट अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल फॉर यू, बट I will email it to the organizers and maybe you can get it from them. Okay. For example, shredding से का एक मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में अगर आप रूरल गर्ल्स एजुकेशन को ब्रेक डाउन करना चाहें तो उसमें आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो कि प्रॉब्लम जो है वो सोशल भी है, सोशल या सोशो कल्चरल कैसे है कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन है गर्ल्स एजुकेशन, राइट।
सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है कि गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के कुछ एटीट्यूड्स हैं, वो शायद नेगेटिव ही, राइट, कि लड़कियों की एजुकेशन से कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस शायद लोग सोशली उसको कंस्ट्रक्ट उस तरह से करते हैं. नंबर 2, चाइल्ड मैरिज. I think 21% of girls in Pakistan get married before they turn 18, right? So that is one problem. Second problem is financial. Schooling requires money, and families, especially within rural arrangements, there are families with 4 or 5 or 6, 7 children, right? And let's say if they can afford education for 3 kids, they will prefer maybe their sons, because they're conceptualized to be future breadwinners for the family. So one problem is financial, right? उसके अलावा सिक्योरिटी है, सेफ्टी है. हमें खुद पता है कि पिछले 10 सालों में गर्ल्स एजुकेशन और सेफ्टी को लेकर पाकिस्तान में एक डायलॉग चलता रहा है. आफ्टर ऑफ कोर्स द मलाला इंसिडेंट इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. उसके अलावा some schools are as far as 50 miles away in some villages, in some rural areas. So mobility वैसे ही females के लिए एक problem है. And females of young age, यानी girls, जो स्कूल ऑलरेडी उनका जाना सोशली जो है वो उसके ऊपर सोशल सैंक्शंस हैं. उसके बाद फिर उसको घर के बाहर इतनी लंबी मोबिलिटी लेट्स से अलग से करनी पड़ रही है कि उसको लेट्स से बस लेना पड़ रहा है, कुछ ड्यूरेशन के लिए पैदल चलना पड़ रहा है. सो यू सी, these are all problems that when we start shredding the problem, we will see many, small set of problems. So each one of them will require different alternate solutions, and based on कि हमने एजेंडा क्या सेट किया था, हमें इन प्रॉब्लम्स के छोटे छोटे सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे. और ये मैं इनकी बात करूंगी जब हम डिजाइन की बात करें. अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट. क्या सेम सेक्स स्कूल्स अवेलेबल हैं, क्या कोएड स्कूल्स अवेलेबल हैं, सेम सेक्स स्कूल्स में ज्यादा फंडिंग किसके ऊपर हो रही है, वैसे ही एजुकेशन के ऊपर कितनी फंडिंग हो रही है, ये सारे क्वेश्चंस. अवेलेबिलिटी. अच्छा, कोविड की बात हुई. कोविड के दौरान हमने डिजिटल एजुकेशन पे शिफ्ट किया. जनरली भी हम जब मोबिलिटी के प्रॉब्लम्स की बात करते थे तो डिजिटल एजुकेशन एक सोल्यूशन आ रहा था, राइट, इवन बिफोर कोविड. मगर कोविड ने एक बात हमें शायद बहुत क्लियरली जो दिखाई वो ये है. आई रिसेंटली रोट अ चैप्टर फॉर आउटलेट जिसमें वी आइडेंटिफाइड दैट जो सोशल गैप है लोगों के बीच में वो डिजिटल गैप से और ज्यादा वाइडन हो रहा है. ऐसे घर है जहां पर इंटरनेट अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता. लेट्स से अगर आप इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, गैजेट्स इतने नहीं, आप एक बच्चे को पढ़ाना 7 बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके घर में एक मोबाइल फोन है. सी, सो डिजिटल गैप के अपने इश्यूज हैं. अब अगर आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसके अपने सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स होंगे, उसको डिजाइन करने के अपने सेट ऑफ टूल्स होंगे. सो यू विल, कभी भी अम्ब्रेला सोल्यूशन आपके माइनर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करता. अम्ब्रेला सॉल्यूशंस आपको आपका जो पॉलिटिकल साइड होगा ट्राइपॉड का, उसको तो हेल्प करेगा, लेकिन वो कभी भी आपको मेथोडिकली एक नुआंस मैनर में सॉल्यूशन नहीं देगा. सो ये सिर्फ पॉलिटिकल विल को सेटिस्फाई कर सकते हैं हमारे अम्ब्रेला सॉल्यूशन, राइट. ओके, फॉर्मुलेशन के अंदर मैं अगेन फिर स्टेजेस मॉडल पे जाऊंगी. फॉर्मुलेशन को मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ कुछ और स्टेजेस. ये स्टेजेस कहीं पे भी कोई मतलब ऐसा पत्थर पर लकीर नहीं है. ये सिर्फ आपका काम आसान करने के लिए मैं इसको ब्रेक डाउन कर रही हूँ, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर से अपेरेंटली स्टूडेंट्स को बातें बेहतर तरीके से समझ आती. नंबर 1 के हम प्रॉब्लम को अगेन इवेल्युएट करें जो हमने अभी किया, श्रेडिंग से. उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स करें. जब आप प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करके श्रेड डाउन करते हैं तो फिर आपको ये समझ में आता है कि बहुत सारे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं. उनमें से आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. लेट्स से पाकिस्तान में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या हमने मोबिलिटी रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना है, क्या हमने फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करना है, क्या हमें सोशल जो गर्ल्स एजुकेशन रिलेटेड सोशो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसको बदलना है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें ये बात आइडेंटिफाई करनी पड़ती है पॉलिसी डिजाइन करने से. पाकिस्तान में अक्सर औकात पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज होते ही हमारी पॉलिसीज का मिसमैच होता ही इसलिए है कि पॉलिसी ग्राउंड रियलिटी से, एमिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग होती है, राइट. रिसर्च नहीं की जाती, सर्वेज नहीं किया जाता. उसके बाद फिर हम ऑप्शंस असेसमेंट करते हैं. ऑप्शंस असेसमेंट में आप
several alternates डिजाइन करें। अब डिजाइन क्या होता है? डिजाइन यूजुअली जब हम पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड टूल्स की बात करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर टूल्स की बात करते हैं कि हमने फलां टूल यूज करके इम्प्लीमेंटेशन की। टूल से मेरी मुराद है इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल सब्सिडाइजिंग, फॉर एग्जांपल टैक्सिंग, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे टूल्स हैं। तो हमेशा टूल्स की बात इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर की जाती है। फॉर्मुलेशन लेवल के ऊपर जो डिजाइन रिलेटेड टूल्स है उसकी बात हम इवन पब्लिक पॉलिसी लिटरेचर में ज्यादा नहीं करते। मैं टूल्स पर्सपेक्टिव इसलिए ले रही हूँ कि ताकि क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मुलेशन करनी है। आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिजाइन समथिंग, सो दे विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग pertaining to tools, right? Okay, tools, डिजाइन रिलेटेड टूल्स क्या है? सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आप ये देखें कि जो सारे ऑल्टरनेट्स आप देख रहे हैं उन ऑल्टरनेट्स की कॉस्ट्स क्या है। कॉस्ट के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं, फंडिंग कितनी अवेलेबल है, कितनी रिक्वायर्ड होगी, राइट? ये एक काइंड ऑफ कॉस्ट टूल आ गया डिजाइन प्रोसेस में। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप विद इन डिजाइन प्रोसेस डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वे रिलेटेड रिसर्च को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सेकेंडरी डेटा को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, राइट? उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के कुछ तरीके होते हैं। पाकिस्तान में यूजुअली टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। वैसे लिटरेचर में 3 तरीके आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो क्लासिकल थियरीज थी उनमें हमेशा टॉप डाउन अप्रोच होती थी। वो क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करके, डिजाइन करके उसको लोगों पे इम्प्लीमेंट कर देती, राइट? कुछ रिसर्चर्स ने अराउंड 80s 90s के अंदर आपको ये ट्रेंड मिलेगा पब्लिक पॉलिसी लिटरेचर में, कि कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि ऐसा टॉप डाउन जो अप्रोच होती है थ्योरी, जो पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की, उसके अंदर ओनरशिप नहीं होती, सोसाइटी ओन नहीं करती उन पॉलिसीज को, राइट? और चूंकि अक्सर औकात पॉलिसीज और प्लान्स जो हैं वो इन फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे होते, एज प्लान्स इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है पब्लिक बाय इन। Therefore, लिटरेचर ने कुछ और इम्प्लीमेंटेशन के तरीके बताए जिनको बॉटम अप अप्रोचेस कहा जाता है। ये मैं सिर्फ आपके ऊपर टर्म्स फेंक रही हूँ बाद में, बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, so maybe you can note them down, go do some of your own research later on, and I prefer students to go and do their own research and come up with their own approaches, because sometimes students they have very inspiring ideas, because the age that you people are in and the mindset that students have, I think none of us as academics have that, because hamara approach bahut focused ho jata hai. So I would really like to see what the students come up with. और उसके बाद हाइब्रिड थियरीज हैं। हाइब्रिड थियरीज ये हैं कि गवर्नमेंट को और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में आकर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज डिजाइन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गर्ल्स एजुकेशन रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज डिजाइन करनी है, तो जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे उनको आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। ऑफ कोर्स दिस कैन टर्न इनटू अ डिजास्टर, बट ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कह रही थी। ओके, और उसके बाद आ जाती है इवैल्यूएशन का स्टेज। 4 स्टेजेस बताए थे मैंने। एजेंडा सेटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं बहुत ज्यादा रेपिटेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास कोई विजुअल एड नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनी हुई। The first one is agenda setting, the second one was formulation, the third one was implementation, and the last one is evaluation. What is evaluation? Evaluation is the process of maybe comparing what you had initially intended and what you ended up doing, and monitoring the success of your policies implementation. इसके अंदर भी बहुत सारे evaluation related tools हैं, but I think because for now you people are I think expected to design a public policy and not implement it or evaluate it, so that is why I put more of my focus on the formulation stage. But if you want to go and research, by all means, I will share some literature with you people to ease your designing process. And I think that's it from my side.